हेलो गाइस, मेरा मेन फोकस इस वीडियो पर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस का है। न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग मैं कल एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें मैं 5 से 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दूंगा। बट मेरा मानना यह है कि आप 1 या 2 दिन पहले न्यूमेरिकल की तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के न्यूमेरिकल सीखना। तो इसलिए बेटर यही है आप लोगों के लिए कि आप थ्योरी एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करें। न्यूमेरिकल एक आधा अपना पक्का कर लेना, वो मैं आप कल के वाले वीडियो में डाल दूंगा। अभी के लिए फिलहाल थ्योरी पे फोकस करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आने के चांसेस है क्वेश्चन के बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। Probability sampling methods are statistical techniques used to select a subset of individuals or items from a larger population in such a way that every member of the population has a non-chance of being included in the sample. Various types of probability sampling methods are include simple random sampling, SRS से बोलते हैं कि in simple random sampling each member of the population has an equal chance of being selected for the sample. This method is conducted without any systematic bias. फिर आपका stratified sampling. Stratified sampling involves dividing the population into subgroups or strata based on certain characteristics, for example age, gender, income, and then randomly selecting samples from each strata. This method ensures representative from each subgroup. Systematic sampling involves selecting every nth number from the population after a random start. Cluster sampling involves dividing the population into clusters, geographical areas, school, household, etc. Multi-stage sampling is a combination of different sampling methods, often involving multiple stages of sampling. Probability proportion to sample size, PPS sampling involves selecting samples with a probability that is proportional to some measures or size or importance within the population. ठीक है, ये हमारा होता है सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरीज। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगेन थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके भी चांसेस आने के, या तो प्रोबेबिलिटी में वो आपका आएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आ जाएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी आ जाएगा। So probability theory is a branch of mathematics that deals with the quantification of uncertainty and randomness. It provides a framework for analyzing and understanding the likelihood of various outcomes or events occurring in a given situation or experiment. Probability theory is essential in various fields including statistics, physics, economics, engineering and computer science, where uncertainty plays a significant role. Different approaches to probability theory include classical probability, also known as a priori or theoretical probability. Classical probability relies on theoretical understanding of the underlying system. It assumes that all outcomes in a sample space are equally likely and assign probability based on the ratio of favorable outcomes to the total number of outcomes. जैसे कि हमारा एक कॉइन का पेयर उछाल के डालना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पास का फेंकना, 6 में से कोई एक नंबर आएगा, वो चीज। Frequentist probability is based on the concept of long run relative frequencies or events occurring in a repeated experiment. It defines probability as the limit of the relative frequency of an event in the number of trials approaches infinity. In frequentist probability are subject and can be determined through empirical observations or experiments. फिर आपका subjective probability is based on the idea that probability reflects the individual's personal belief or degree of uncertainty about an event. Unlike classical and frequentist, which rely on objective measures, subjective probability incorporates personal judgment, opinions and experiences. फिर आप axiomatic probability. Axiomatic probability is the mathematical approach to probability theory based on a set of axioms or fundamental principles. It provides a rigorous foundation of probability theory of defining probabilities as measured on a probability space, satisfying certain axioms such as non-negativity, additivity and normalization. आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं। शॉर्ट नोट्स पिछले वाले में पढ़ाया, थोड़ा सा मैंने आपसे 6 से 8 शॉर्ट मीन डिस्कस कर लिए, उनका पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, छोड़ दीजिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन मैंने आपको पहले पढ़ा रखा दूसरे वाले वीडियो में। The normal distribution, also known as the Gaussian distribution or bell curve, is continuous probability distribution that is systematic and bell-shaped. It is characterized by the mean, mu, and standard deviation, which determines its center and spread respectively. Properties of the normal distribution include its systematic around the mean the highest point mode at the mean. The area under the curve represents probabilities, with 68.27% of the data filling with one standard deviation of the mean, 95.45% within 2 standard deviation, and 99.73% within the 3 standard deviations. The normal distribution widely used in statistics model various natural phenomena such as height, weight, IQ, scores, and error in measurements. One-tailed test क्या होता है? A one-tailed test is a hypothesis test where the critical region lies entirely on one side of the sampling distribution. It is used to test whether a parameter is significantly greater than or less than a hypothesis value, but not both. फिर आपका hypothesis testing procedure. Hypothesis testing is a statistical tools used to make inference about population parameters based on sample data. The general procedure of hypothesis testing involves several steps. Select an appropriate test statistic significance level, formulate null and alternative hypothesis, determine the distribution of the test statistics, compare the calculated test statistics to critical value, make decision to reject or fail, draw conclusion.
इसको अच्छे से पढ़ लेना। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, ये सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा, अगर सेमेस्टर में नहीं भी आया तो आपको पढ़ा हुआ बेकार नहीं आएगा, सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा। रिग्रेशन एनालिसिस है स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टर्स एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम। इट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर में क्या होता है, आप एक इंडिपेंडेंट होता है और एक आपका वेरिएबल होता है, यानी ये समझिए कि सेल्स को मार्केटिंग इफेक्ट कैसे करती है, समझ गए। मार्केटिंग और सेल्स, सेल्स क्या है आपका आउटकम और अफेक्ट करने वाली चीज, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ हुआ सेल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ मार्केटिंग। अब इसमें समझिए एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है। अब इसमें मैं एक फैक्टर और बता देता हूँ, सेल्स ही है, मार्केटिंग यानी आपका एडवर्टाइजमेंट है, प्लस एक क्रिटिकल रीजन लगा देता हूँ कि यंगस्टर्स में कितना है, यानी एक और मैंने ऐड कर दिया, मल्टीपल रिग्रेशन हो गई। यानी वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, एज है, एडवर्टाइजमेंट्स है, लोगों की एज और एडवर्टाइजमेंट्स जो इसे अफेक्ट करती है किसको, सेल्स को। डिपेंडेंट क्या है, सेल्स, और अफेक्ट क्या कर रही है, दो चीजें, तो क्या होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है दोस्तों, और बाकी ज्यादा लॉजिस्टिक वगैरह मत पढ़िएगा, मल्टीपल में आपने सिर्फ दो ही लिखने, सिंपल लिखिएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लिखिएगा, ज्यादा रिग्रेशन लिखने से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, what is the main reason for classifying data, also explain the some common types of classification of data refers to the process of organizing and categorizing data into distinct groups or classes based on shared characteristics or attributes. The main purpose of classing data is facilitate its management, analysis, retrieval and interpretation. ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, दूसरा एनालाइज करना है, तीसरा इंटरप्रिटेशन करनी है उस डेटा की, उसके बाद कम्युनिकेट करना है सही से और सिक्योर करना है। कॉमन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड कैटेगरी क्लासिफिकेशन, कैटेगरी बेस पे आप कर सकते हो, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग डेटा इनटू ऑर्डर, चाहे वो रैंक के हिसाब से, चाहे हायरार्की के हिसाब से, चाहे लो से मीडियम हो, चाहे ए टू जेड हो, जैसे भी आपको करना है। ऑर्डिनल न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन 0 से 8 या फिर उल्टी आप करना चाहो 99 से 0, सही है, इस तरीके से। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन 1 2 हायरार्कीज बेस, पहले बॉस फिर सुपर बॉस, मतलब पहले सुपर बॉस फिर मैनेजर फिर उसके बाद फ्लोर मैनेजर, इस तरीके से। ठीक है, पहला है हमारा why is forecasting so important business, identify the application of forecasting for short term and medium term decisions। ठीक है, फोरकास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस में और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कैसे होती है। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर ट्रेंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, करंट कंडीशन एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड सपोर्ट्स प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या है फोरकास्टिंग इन बिजनेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, सेकंड एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन आपकी एफिशिएंट वे में करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग में आपकी हेल्प करता है, इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है आपको और रिस्क आपका बहुत रिड्यूस करता है। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग फॉर डिफरेंट डिसीजन हॉरिजन। शॉर्ट टर्म क्या होता है, अप टू 1 ईयर, उसमें कैसा होता है, यूज मेनली फॉर ऑपरेशनल डिसीजन लाइक डिमांड फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, वर्कफोर्स शेड्यूल, शॉर्ट टर्म प्राइसिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी। मीडियम टर्म फोरकास्टिंग एप्लीकेशंस कहां पे यूज होती हैं, यूज फॉर टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, सप्लाई चेन एंड वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोडक्ट मिक्स एंड मार्केट एक्सपेंशन डिसीजन। अच्छा, आपको सिर्फ मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूं, आपके उसके अंदर का कंटेंट खुद बना के लिखना होता है। ठीक है, तो समरी पढ़ते हैं। Forecasting is essential for planning, controlling, and managing business operation efficiently, whether it's a daily inventory management or multi-year financial strategy. Accurate forecasting ensures the businesses stay competitive, agile, and profitable. समझ रहे हैं आप? ये हमने आपका क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, हमने आपको शॉर्ट टर्म का बता दिया, मीडियम टर्म का भी बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको मैंने सिर्फ देखा तो मोटा मोटी मैंने हेडिंग पढ़ाई है। आप 20 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखोगे तो आपका काम चलेगा क्या, कभी नहीं चलेगा। बट आपने ये पॉइंट्स लिख के तो थोड़ा बड़ा बनाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग तो आपने लिख दिया, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको उसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, मतलब एलोबरेट आपको करना पड़ेगा। एसेंस आपको मिल गया, हेडिंग्स आपको मिल गई है, आप पेपर पे लिखिए। और इस पेपर के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो देख के आपका काम चल जाएगा, आई एम रियली सॉरी टू से दिस माय फ्रेंड, बट आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल वाला पेपर है यार, ये सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलेगा आपका। आप चाहिए कॉपी पेन उठाइए, थोड़े न्यूमेरिकल कीजिए। So guys, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन 4, that is the success of collecting data through a questionnaire depends mainly on how skillfully and imaginatively the questionnaire has been designed. Explain in the view of the statement designing of questionnaire. Certainly, here's the detailed answer in essay format. The success of collecting data through a questionnaire depends mainly on how skillfully and imaginatively the question has been designed. Explain the context of designing a questionnaire. A questionnaire is widely used tool in research and for collecting data from respondents. It consists of a series of structured or unstructured questions aimed at gathering information on a specific topic. However, the effectiveness of this method does not solely lie in the distributing the questionnaire. It significantly depends on how well it is designed. समझ रहे हो? क्वेश्चनियर कैसे होता है, सर्वे आप लोग करते हो, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, उससे रिलेटेड होने चाहिए या फिर उसके साथ सिग्निफिकेंट। जैसे कि आपकी शादी हुई, आपके कितने बच्चे हैं, आपका सडन क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपके बच्चों की एज क्या है, क्या कोई आपके बच्चे, आप ऐसा पूछ लोगे कि आपके बच्चे हैं और फिर आप पूछोगे आपकी शादी हुई है, मतलब कितना अभद्र लग रहा है। तो क्वेश्चन की डिजाइन किस तरीके से हुई है, क्वेश्चन आपको उस तरीके से होना चाहिए।
इंपॉर्टेंस ऑफ स्किलफुल एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चन डिजाइन। पहले तो क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी होना चाहिए, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि बहुत ही हैवी वर्ड्स डाल दिए जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहे। वेरी सिंपल, आप आम लोगों के लिए बना रहे हो, किनको कैटर करना चाह रहे हो उनके हिसाब की लैंग्वेज रखिए। लॉजिकल सीक्वेंस एंड फ्लो, बिल्कुल लॉजिकल, जिसमें मैंने बताया कि आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे हैं, ये ना कि आपके बच्चे हैं और फिर आपसे पूछो आपकी शादी हुई है, ये उल्टा सीधा हो जाता है। अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स, आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए रादर देन क्लोज एंडेड। अवॉइडिंग बायस एंड लीडिंग क्वेश्चंस, आप बायस क्वेश्चंस को मत पूछिए और लीडिंग क्वेश्चंस को पूछिए। वो क्वेश्चंस नहीं जो एंड कर दे किसी क्वेश्चन को, लीड करे, जो आगे फर्दर बढ़ाए, जिससे आपको न्यूट्रल और एकदम सामाजिक राय मिले लोगों की, रादर देन की बहुत बायस सोच मिले। समझ रहे हैं? उस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करना चाहिए, आप फ्री माइंड से कोई आंसर करें। Relevance to objectives. Each questionnaire should be directly related to the research of objectives. Irrelevant question wastes respondents' time and can result in lower response rates. Length and timely efficiency. A questionnaire that is too long can be exhausting and lead to incomplete responses. It must be concise yet comprehensive enough to meet the information needed. Imaginative design for engagement. Creativity in the form of visual, color, coding और interest formats. थोड़ा imaginative बनाओ, थोड़ा कलरफुल बनाओ ताकि लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो। बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो उनको बहुत एंटरटेनिंग लगे, जो उनके दिल को छुओ। मतलब समझ रहे हो, दो क्वेश्चन बेकार हो तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो जो उनको अट्रैक्ट करे, मतलब ताकि बंदे का इंटरेस्ट बना रहे। पायलट टेस्टिंग, बिफोर यू फाइनल यूज क्वेश्चन शुड बी पायलट टेस्टेड। आपने पहले खुद पे टेस्ट करना होता है एनवायरमेंट में, इंटरनल एनवायरमेंट, उससे पेपर रिलीज करने के। कॉन्फिडेंशियल एंड एथिकल कंसिडरेशन, रिस्पोंडेंट शुड फील सेफ एंड एश्योर्ड दैट देयर रिस्पांस विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। आपने ये बताना है कि सामने वाला क्वेश्चनर जो भी हो रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। In conclusion, the success of data collection using a questionnaire indeed hinges on how thoroughly, thoughtfully, or creatively it is designed. A well-crafted questionnaire ensures high response rates, meaningful data, and better decision work on. Without paper design, even the sampling of research study can fail. Therefore, designing a question should be approached with careful planning and clarity and innovation. दोस्तों एक और चीज मैं बताना भूल गया, आप इस पेपर में कैलकुलेटर जरूर लेके जाइएगा। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है बिकॉज यू आर डूइंग मैथमेटिक्स थिंग, तो कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर जरूर करिए इसमें। और दो क्वेश्चन मैंने थ्योरी के ऑलरेडी पढ़ा दिए इस चैप्टर से, और तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करना। और पेपर का पैटर्न भी यही है, आपके 7 में से 3 क्वेश्चन थ्योरी आएंगे, बाकी सारे मोस्टली आपके न्यूमेरल्स आने वाले हैं। तो न्यूमेरल्स तैयार करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वही आपका पास होने का तरीका है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहला, यूनिकनेस। फॉर अ गिवन डाटा सेट देयर इज वन एंड ओनली वन अरिथमेटिक मीन। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, फार्मूले के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं इसको? The sum of deviations of observation from their arithmetic mean is always 0. यानी summation of arithmetic mean is equal to 0. A fact of change in origin and scale, if each observation is transformed as y is equal to a plus b into x, then y is equal to a plus b into x mean. वो efficient दिखाया गया, वो x mean कर रखा है, average कर रखा है। Additivity, these means of combined groups can be compared using weightage averaging. Influenced by extreme values, it is sensitive to outliers and skewed data. बर्नौलीज का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब बर्नौलीज प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ बाइनरी 2 आउटकम्स ट्रायल्स वेयर ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, सक्सेस इज इक्वल टू 1 और फेलियर इज इक्वल टू 0। बाइनरी हमारी कोडिंग होती है ना, 0 1 0 1, वही बाइनरी का प्रिंसिपल है। ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ट्रायल्स। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड। एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन, हेड और टेल, पासिंग, फाइलिंग, एग्जाम, बाइंग और नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट। मतलब या तो करोगे या नहीं करोगे, 1 या 0, वो बाइनरी से हम बर्नौली प्रोसेस करते हैं। Widely used in quality control, marketing analytics, and reliability testing. Decision tree approach. A decision tree is a graphical representation of possible solution to a decision based on different conditions. It includes decision nodes, squares, chance nodes, circles, and branches representing alternatives or outcomes. Helps in decision making under risk and uncertainty by visualizing possible consequences and probabilities. Used in project selection, investment decisions, and strategic planning. Advantages: provides clarity in complex decision scenarios. Non-probability sampling. In non-probability sampling, not every element of the population has a non or equal chance of being selected. Types of include convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, snowball sampling. ठीक है, यूजफुल व्हेन टाइम ऑफ कॉस्ट कंस्ट्रेंट, प्रिवेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अरे नॉन सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना आपका 20 नंबर में भी आ सकता है, तो ये तो मैं छोटे शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बाकी 20 नंबर में भी आ सकता है, इसकी थोड़ी तैयारी कर लेना, क्या नहीं चांस हो सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर क्रिएशन, द लीस्ट स्क्वायर क्रिएशन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन, रिग्रेशन लाइन, through a set of data points by minimizing the sum of the squares of the vertical deviation from each data point to the line. Formula wise कैसा होता है? Minimizing summation of yi is equal to yi mean square. Widely used in regression analysis, forecasting and time series analysis. Helps in estimating non-parameters of a model. अच्छा ये सुनो, ये जो शॉर्ट में आते हैं ना 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो गॉड नोस कौन से पूछेंगे, बट इन 5 में से कोई एक भी अगर आ गया तो आप अटेम्प्ट करोगे, पर